This side? Gurudev is cricket. Oh, 3 hours driving from New York. Oh, you are from New York. Flight. K-pop account gitu lah. Ini lah. K-pop account. And she was thinking, because she hasn't decided yet. Here's Iowa. This one, the red Yes, one. the red one. If you sit, it will keep this stable. Which city? No. Portland. The water is here. Iowa here. Oh, Drink. this is just the Yes. tourism. This is not the city. Iowa City they have there. Cheddar Falls. Gurudev komt 3 keer per jaar naar Nederland. Cheryl. Yeah. I think you're not going Iowa. He's not going Iowa. Maybe in the future. Yes, but He better come to this Netherlands here. Yeah. You can two benefits, spiritually and also naturally good. Zo waar. Spirituele gaat daar in Amerika een beetje afbreken. so I told her you ask Gurudev advice. Yeah, you come to Netherlands, good. Huh? Many devotees also there. And you can study, you can get benefit. Huh? Your father, your parents, what they do? My parents, they have their own business here. Like their house is for rent. How many brother and sister have you? One sister, but she's already married, so I'm alone now with my parents. Okay, Netherlands is good. Okay. That is the devotee. Huh? Yes, yes. En ik wil iets zeggen. See what is doing. What is that? Business administration. Business administration. They're smart girls. They'll study university. No, you can stay here. Just So she has one question. What's the question? Now, in your book, Jewels of the Heart, in your book, Jewels of the Heart, you have one shloka that's Pajami Radham Aravinda Netram Smarami Pajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smutashtam Badami Radham Ketna Badadram Tato Manvesti Katirna Kapi. But can you explain the meaning of the shloka? Vajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smutashtam Vadami Radham Karuna Bharadra Tato Mama Nasti Gatir Nakali. Actually, this slok explains my latest book. What is that? Madhusmita Radha. Do you have this book? Huh? You read this book or not? Madhusmita Radha. But it's in English. No, this book also I explain. This is how actually this verse composed by Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami Bhajami Radham Arvinda Netrang Smarami Radham Madhura Sukasham Vadami Radham Karuna Bharadra Tato Mama Nasti Gatir Nakati. Bhajami Radham. I worship Srimati Radha. हिंदी में बोले इंग्लिश बोले हिंदी में बोले You can speak Hindi, no problem. भजामि राधाम. रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते करते नाम करते करते राधा जी के स्मरण स्फूर्ति हुई. क्योंकि कोई साधक जब भजन करता है, नाम भजन करते हैं, नाम चिंतन करते हैं, नाम चिंतन करते हैं, तो नाम चिंतन करते करते उनके हृदय में अपने इष्ट देवी की स्फूर्ति हो जाती है. स्फूर्ति समझते हो? स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन कमिंग इन हिज हार्ट. इसका तो स्टिमुलेशन आ जाता है. नाम भजन उसी की कहा जाता है. नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से वो स्वतःस्फूर्त रूप में, स्वतःस्फूर्त समझते हो? स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप में नाम की जो अधिष्ठात्री देवता,
the presiding deities of holy name continuous manifest in your heart. ये तो हमें अपने आप उदित होगा, कोई दिखावटी करके नहीं, क्या बोले, ये करना नहीं पड़ता, इमिटेशन करना नहीं पड़ता। नाम ऐसे एक वस्तु है, नाम करते करते स्वाभाविक रूप में ये स्फूर्ति प्राप्ति है। ठीक उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रह करके जब भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तो नाम करते करते अपने इष्ट देवी की स्फूर्ति हुई। उनकी इष्ट देवी कौन है? राधा जी। इसलिए रघुनाथ दास उसी में करें, भजामी राधन अरविंद नेत्रम, भजामी राधन, मैं राधा जी के जो है सुंदर मुख, सुंदर नेत्र कमल को मैं स्मरण करता हूँ। भजामी राधन अरविंद नेत्रम, बदामी राधन करुणा भरात, भजामी राधम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां, स्मरामि राधम मधुर स्मितास्यां, मैं राधा के अत्यंत सुंदर जो है मंद मुस्कान है, उनके मुखार बिंदु को मैं स्मरण करता हूँ। बदामी राधं करुणा भराद्र, बदामी राधं, ओहो राधा जी के इतने करुणा की कथा मैं ही स्मरण करता हूँ। इसलिए भजामी राधं अरविंद नेत्रं, स्मरामि राधं मधुर स्मितास्यं, बदामी राधं करुणा भराद्र, ततो मम नास्ति गतिर्न कापि, ततो मम नास्ति। अर्थात यह छोड़ करके मेरा और कोई जीवन की उद्देश्य नहीं। साधक भजन करते करते इसकी कहते हैं स्फूर्ति कहा जाता है। स्फूर्ति कहा जाता है ये अपने अधिष्ठात्री देवी साक्षात रूप में अपने हृदय में जो प्रकट होना है उसी का स्फूर्ति कहा जाता है। क्योंकि नाम चिंतामणि है। चिंतामणि माने जो चिंता करोगे वही आपके हृदय में प्राप्ति होगी। इसके नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। भगवान के नाम की इतने सुंदर, भजामी राधं अरविंद नेत्रम। ये कथा प्रसंग इसके बैकग्राउंड में यह है कि अपराकित दिव्य लोक में, गोलोक वृंदावन में है, राधा जी किस प्रकार ये अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के लिए आतुर होती है। आतुर समझते हो? आतुर से कहते हैं अहंकारी है। श्रीमती राधिका सिंह से अहंकारी हाउ टू मीट विथ हर बिलवेड कृष्णा। गोविंद के साथ मिलन के लिए इतने उत्कंठ हो जाता है। किंतु उसने जावट में जटिला और कुटिला, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, जटिला कुटिला राधा जी के जो है प्रहरी माने ये दे रही है, गाड़ दे रही है। आज राधा जी घर से किसी प्रकार बाहर जा नहीं पाई, किंतु राधा जी कृष्ण के मिलन बिना उनके चैन नहीं जाएगा। इसलिए राधा जी विचार कर रही है क्या करें। तो उस समय राधा जी के अत्यंत निकटतम जो प्यारी सखी, ये कहा जाता है कौन? रति मंजरी। रघुनाथ दास गोस्वामी की सिद्ध देह जो है रति मंजरी। और उसी समय रति मंजरी विचार करने लगी राधा जी कैसे कृष्ण के साथ मिले। राधा जी तक अपने घर में बैठी हुई है। कहाँ पर घर है? जावट में। जावट में अपने ससुराल में अपने गृह में वो बैठी हुई। और जटिला और कुटिला मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ राधा जी को पहारा दे रही है। जब राधा जी आज किसी तरफ
बाहर जेल है? आ जाए तो स्वयं राधा जी जोग माया के स्मरण करने लगी, क्योंकि गोविंद की, राधा गोविंद की जो कुछ लीला होती है, इस लीला में स्वयं जोग माया ही व्यवस्था करती है, जोग माया की यही व्यवस्था होती है। तो राधा जी क्या करें, राधा जी की सिर में दर्द होने लगी, तो राधा जी जाकर के अपने कमरा में जाकर के लेट गई, सो गई। और राधा जी के अत्यंत निकटतम जो सखी जो है वो रूपमंजरी, राधा जी के चरण कमल के जो है वो मसाज करने लगे, दबाने लगे, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में वर्णन करते हैं, जब रूपमंजरी राधा जी के चरण कमल को जब मसाज करते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी भाव में अभिष्ट होकर के वो सेवा प्रार्थना करते हैं, पदाब्ज स्तवना क्या बोले, हे रूपमंजलि श्रीरूपमंजलि करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजारवित मस्तकाय हा मदद कनक गौरी पदारविंदम सन्वहानी सनक स्तव किम करीसे। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी भजन करते करते यह विस्मरण कर रहे हैं कि श्रीरूपमंजलि करार्चित पाद पद्म, स्वयं रूपमंजरी इस प्रकार राधा जी की चरण कमल की जो है सेवा कर रही है, मसाज कर, श्रीरूपमंजलि करार्थ पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्थ मस्तकाया, और उसी सुंदर निवृत्त निकुंज कुंज में जहाँ पर राधा जी कृष्ण के गोद पर लेटी हुई, कृष्ण की भुजाएं मानो, बाहु मानो ये क्या हो गया, तकिया हो गया, राधा जी अपने सिराहना की जो है कृष्ण के भुजा के ऊपर रखे हैं, और उस समय रूपमंजरी धीरे धीरे राधा जी की चरण कमल को मसाज कर लिया, दबा लिया। रूपमंजरी करार्थ पाद पद्मो गोष्ठंग भुजार्थ मस्तकाया हा मदत कनकगुरी पदारविंदम। उस समय ही रघुनाथ दास के समय यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मुझे ऐसी सेवा प्राप्ति होगा, ये रूपमंजरी मुझे राधा के चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति कराओ, ये प्रार्थना। तो आइए कथा में राधा जी कहाँ क्या हुई, न सिर में दर्द, राधा जी अपने कमरा में जाकर के सो गई। और राधा जी के सिर में दर्द किस लिए हुई, क्योंकि कृष्ण के साथ नहीं मिलने पर उनकी अनेक प्रकार की जो है दुश्चिंता आ जाता है, इसलिए सिर में दर्द हो। और जाकर के अपने कमरा में जाकर के राधा जी लेट गई, और रूपमंजरी राधा जी के चरण कमल को क्या कर रही है, सेवा कर रही, मसाज कर। यह जटिला और कुटिला मानो दो दरवाजा पर बैठी हुई, एक बाहर की दरवाजा और एक सामने की दरवाजा, घर के दो दरवाजा होते हैं, इधर ही तो मानो जटिला कुटिला दोनों दरवाजा पर बैठी हुई है, ये राधा जी आज बाहर जाने पाए। तो जोग में राधा कृष्ण के मिलन के लिए एक सुंदर व्यवस्था कर दिया। उस समय क्या हुई, जोगमाया के स्मरण करने के साथ ही साथ, अर्थात राधा जी जोगमाया के स्मरण करने के साथ ही साथ मानो जटिला की आंख में नींद आ गई, निद्रा देवी आ गई है, निद्रा देवी आ गई ना, बस इतने गंभीर निद्रा में पड़ गई है, सो है, निद्रासन में मानो बैठ गई है। जैसे कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को क्या वर मांगा, मुझे इंद्रासन दीजिए, किंतु इंद्रासन नहीं मांग करके क्या बोला, मुझे निद्रासन दीजिए। निद्रा समझते हो, बस सो जाता हूँ,
ठीक उसी प्रकार मानो जटिला निद्रासन में चली गई, मैंने सो गई बस, इतने उनके निद्रा में। और दूसरा भी कौन रह गया? कुटिला रह गई दूसरी दरवाजा पर है? फिर जो मैंने क्योंकि कुटिला की सिर पर इतने दर्द होने लगे है? वो भी अपने कमरे में जाकर वहीं पर जाकर के वो ले गए। और उस समय स्वयं रतिमंजरी जो है वो कुटिला की जो है सेवा करने लगी, सिरहाना जो सिर जो है मसाज करने लगी है, मस्तक मसाज करने लगी। तो अभी तो सारे रास्ता खोल गया ना है? पीछे के दरवाजे में कोई नहीं है। तो उस समय रतिमंजरी इंगित के द्वारा रूपमंजरी के कहने लगे जाओ स्वामिनी श्रीमती राधा के इसी दरवाजे से ले जाओ और कृष्ण साथ मिलाओ, क्योंकि गोविंद मिलन बिना राधा की चिन्ह नहीं है। राधा मीन्स नॉट हैप्पी विदाउट मीटिंग विद श्रीमती राधा। So now coming in this Srimati Radhika, she left Javati and now she met with Krishna in one Pacific Kunja. And Radha Krishna they performed sweet enough pastimes in there. Radha Krishna अत्यंत सुंदर मधुर मिलन आदि हुई। और इसके मिलन के बाद मानो 2-3 घंटे मिलन के बाद फिर राधा जी रूपमंजरी के कान पर हाथ रख करके फिर जावट में माने अपने घर में प्रवेश कर रही है। तो उसी समय स्टिल उस अभी तक कुटिला क्या कर रही है? कुटिला क्या कर रही है? कुटिला अपने सिर में दर्द हुई वो सो रहे हैं। और रतिमंजरी क्या कर रही है? उनके सिर को जो है दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। उस समय राधा जी जब अपने गृह में जब प्रवेश करने लगे और रतिमंजरी राधा जी की वह सौंदर्य माधुर्य देख करके उसकी करें भजामी राधा अरविंद नेत्राम। राधा जी की नयन कमल के जो है मैं स्मरण करती हूँ, बस स्मरण करता हूँ। भजामी राधा अरविंद नेत्राम, यह पर राधा जी की आंखों के साथ कमल के साथ तुलना दी गई। क्यों? सारा रात्रि कृष्ण के साथ मिलन और जागरण हेतु, जागरण समय क्यों वही कारण, इसलिए राधा की दोनों आंखों की माने कोना क्या होगा? नेत्र प्रांत जिसे कहते हैं, corners of her eyes, the corner of her eyes little bit reddish color, जैसे कमल के पंखुड़ियों देखा आपने? Have you seen the petals of the lotus flower? लोटस फ्लावर की पंखुड़ी जो है उसको दोनों तरफ क्या होता है? लाल लाल आभा युक्त होता है। ठीक उसी प्रकार राधा जी की आंखों की दोनों कर्नर, टू कॉर्नर्स ऑफ द आईज ऑफ श्रीमती राधिका रेडिश कलर, तो उसके साथ तुलना दे रहे कमल की पंखुड़ी के साथ। भजामी राधं अरविंद नेत्रं स्मरामी राधं मधुरम स्मिताश्रम। और जब राधा जी जब गृह में स्पर्श करने लगे, राधा जी इतने सुंदर मंद मुस्कान उनके मुखारविंद, कृष्ण मंद मुस्कान हो रही है राधा जी। या अभी मानो कृष्ण से मिलकर गए, कृष्ण मिलन जनित जो हृदय में जो आनंद जो है वो आनंद की उच्छ्वास है, अब वो मानो उनके हृदय से उमड़ करके आ रही है। हृदय में इतने आनंद होता है। गोविंद मिलन हेतु जो आनंद जो है मानो राधा जी की मुखारविंद में वो है। आनंद की सूचना कहाँ पर हमें मिलते हैं? बोले होठों में मिलता है। किसके हृदय में आनंद हो वो आनंद की रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? होठों में होता है। होठ समझते हो? लिप्स। चित्त में यदि दुख हो और होठों में क्या होगा? दुख की प्रतिभाग होगा।
क्योंकि हमारी सब कुछ जो हृदय में जो कुछ भी वस्तु है, सुख दुख, वो हमारे मुख में विशेष करके होठों में वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंबित होता है। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है फेस इज द इंडिकेट ऑफ माइंड। हृदय में तुम्हारे मन में जो कुछ है वो हृदय में क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? चेहरा पर रिफ्लेक्शन, चेहरा में मुख, हाँ, मुख चेहरा पर पर तुम्हारी वो रिफ्लेक्शन, मुख में चेहरा में सबसे कहाँ पर आता है वो, होठों पर आता है, होठों पर आता है, आंखों पर आता है, नाकों पर आता है। ये समस्त वर्णन है शास्त्र में। हृदय जो यदि आनंद हो, आनंद की लहरियां कहाँ कहाँ पर आती है, ये सब दिखा रहा है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ये श्रीमती राधिका जब अपने कमरा में, गृह में जब प्रवेश कर रही हैं, उनकी होठों की जो सुंदर जो आभा है वो अभी दिखा। इसलिए भजामि राधा अरविंद नेत्र स्मरामि राधा मधुर स्मिताश्री। कितने सुंदर मंद मुस्कान है उनके होठों में, मानो अभी दिखाई पड़ते जा रहे हैं। जिससे कृष्ण के साथ मिलन है, तो कृष्ण के साथ अनेक प्रकार रस माधुर्य, भाव माधुर्य आदि मानो वो प्रतिफलित हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको चिंता कीजिए। बदामी राधम अरविंद नेत्रं स्मरामि राधम मधुर स्मिताश्री। बदामी राधम करुणा भराद्र, बदामी राधम करुणा भराद्र। ओहो, राधा जी की जो ऐसी जो करुणा, उसको मैं वर्णन कर नहीं सकता। क्यों? राधा जी जब गृह में प्रवेश किया, देखा, राधा जी क्या देखा, ये मेरे सेवा के लिए, अर्थात मेरे कृष्ण के साथ मिलन के लिए। और रति मंजरी क्या कर रही है, जो सदा सर्वदा मेरे साथ जो कलह करने वाला, झगड़ा करने वाला, कौन? कुटिला। कुटिला शब्द कर, जो कुट 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 करता है, जो कुट 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 करता रहता है। कुछ लोगों के स्वभाव होता है बक 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 करना, दूसरे के दोष देख करके बक 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 करता है। तो कुटिला की उसकी स्वभाव है क्या, कुट 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 करना है। तो वही कुटिला को क्या कर रही है, रति मंजरी क्या कर रही है, सिर को दबा रही है, उनके सिर को दबा रही है। तो राधा जी ऐसे देख करके, राधा जी के क्या हुआ, हृदय द्रवीभूत हो गया। ये मेरे सेवा के लिए, यानी कृष्ण की मिलन के लिए राधा जी किसको सेवा कर रही है, रति मंजरी कुटिला को, रति मंजरी किसको सेवा कर रही है, कुटिला को, कुटिला को सेवा कर रही है। उस समय राधा जी के मानो सारे वो क्या बोले, भाव ना, बदामी राधा करुणा, उनके करुणा की उद्रेक हो रहे हैं। उद्रेक समझ लो, कंप्लीटली मैनिफेस्ट भाव ऐसे आ रहे हैं। तो इसी के वर्णन होते जा रहे हैं। हमारे आचार्य बाद ने इसको वर्णन किया, और इसी को आप अच्छी तरह से आप समझना चाहते हो, पढ़ो। कौन सा ग्रंथ है, इस मधुर स्मृता राधा है तुम्हारे पास, पढ़ो उसको। उसमें लिखा है, भजामि राधं अरविंद नेत्रं स्मरामि राधं मधुर स्मिताश्री। बदामि राधं करुणावराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। रघुनाथ दास कहते हैं, इस भी हमारे जीवन की सार है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी की कहा जाता है भजन साधन कहा जाता है। भजन रहस्य इसी है। रहस्य शब्द का अर्थ क्या होता है, गोपन, सीक्रेट, सीक्रेट है। भजन की सीक्रेट क्या है, नाम करते करते यह समस्त भाव हृदय में स्फुरित होगा, मैनिफेस्ट होगा। नहीं तो नाम तो सभी करते रहते हैं, किंतु नाम करने की प्रणाली क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस टू चैंटिंग द होली नेम।
Sri Rupa Goswami Pad explained in his Nectar of Instruction, Tannam Rupajitadu Sukritanam Smrutu Pramena Rasana Manasi Vijajju Tishchankraji Tadanuragi Jananugami Kalam Naye Takilam Itta Upadesha Saram. Akila? Upadesha Saram. Raghunath Rupa Goswami Pad kare. This is the essence of my nectar of instruction. जो भी उपदेश दिया समस्त उपदेश के साथ ऐसी ही है. क्या है? हम कैसे हरिनाम करें, कैसे हरिनाम करें. तन नाम और प्रचलितादि सुकृत नाम स्मृतो. भगवान की नाम तो जप करो, किंतु कौन सा नाम जप करो? भगवान की मधुर नाम की जप करो. यद्यपि कृष्ण की समस्त नाम ही क्या है? मधुर है, तथापि जो समस्त नाम कृष्ण के माधुर्य लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है उसी नाम को जप करो. जैसे हम प्रातः काल में कौन से नाम जप करते हैं? जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमण रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा रमण रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र, जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र, जय जय ललिता विशाखा यदि जत सखी वृंद, जय जय ललिता विशाखा जत सखी वृंद, जय जय श्री रूपा मंजरी रति मंजरी आनंद, जय जय श्री रूपा मंजरी रति मंजरी आनंद, जय जय पूर्णमासी योग माया जत वीरा वृंद, जय जय पूर्णमासी योग माया जत वीरा वृंद, जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, राधे गोविंद, जय राधे गोविंद. इसी नाम को जप कर राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन. ये जुगल किशोर की जुगल सरकार की नाम है. जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन. कृष्ण के एक नाम क्या है? श्याम सुंदर. अरे श्याम सुंदर पाखी धैर्य दे ओ पाखी दय न कथा, ओ पाखी कय न कथा फिराय न तार आँखी रे, ओ श्याम सुंदर पाखी रे. इसमें तो बहुत उच्च स्तर के कीर्तन है. राधा जी विरह दशा में कारी है, कृष्ण कैसे कानी है, धूर्त है. कानी समझते हो आप? कृष्ण वेरी कानी धूर्त है. देखो जिसके साथ मैंने प्रेम किया है, सब कुछ मान अपमान की सह्य करके मैंने सहन करके मैंने क्या किया? कृष्ण के साथ प्रेम किया है. और प्रेम करके उनको क्या कहाँ रखा मैंने? अपने हृदय में रखा. मानो राधा जी कारी है, मेरा हृदय कैसे है? केज है. केज समझते हो? पिंजरा. पिंजरा है. और वो श्याम सुंदर पक्षी को मैंने पिंजरे में रख दिया है. जैसे पक्षी के रखा जाता है ना, कहाँ रखा जाता है? पिंजरे में. पिंजरे में रखा जाता है. इसलिए कहते हैं श्याम सुंदर पाखी पिंजरे में रखा है. किंतु उनके साथ इतने प्रेम प्रीति किया. जैसे पिंजरा में पक्षी को रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है? सुंदर सुंदर अनार के अनार होता है ना, दाने उसको खिलाया जाता है. अनार समझते कि नहीं? पोमेग्रेनेट सीड्स है. उसे श्याम सुंदर पक्षी रे, उस श्याम सुंदर रूपी पक्षी को मैंने क्या कहाँ रखा? अपने हृदय रूपी पिंजरे में रखा. और उसको क्या खिलाया? अनार की दाना खिलाया. उनकी अनेक कथा मैंने सिखाया है राधा जी विरह दशा. किंतु देखो वो बेईमान पक्षी
बेईमान समझते हो? Unchaste, अनग्रेटफुल, ungrateful. पर्सन, वो बेईमान पापी। वो क्या किया? हमारे हृदय रूपी पिंजरा को, माई हार्ट इज एज लाइक केज, और वो पक्षी ने क्या की? हमारे हृदय रूपी पिंजरा को काट करके वो भाग गए, उड़ करके चले गए। हैं? देखो इसने कहा रहे हैं एमन बेईमान पाक ही हैं, और हृदय रूपी पिंजरे को काट करके कहाँ चली गई? उड़ करके भाग गई। इसलिए कहते हैं वही श्याम सुंदर पाकी रे नहीं डाली बगदी, ओ पाकी काय न कथा फिरा न कर आंखी रे। जो वो पिंजरे में चली उड़ करके चले गई, वो एक बार आंख घुमा करके मुझे तरफ नहीं देख रही है। वो पाखी काय न कथा, अभी बात भी नहीं करती। तात्पर्य क्या? कहता कृष्ण वृंदावन से कहाँ चली गई? मथुरा चले गई। आज समझे? ये कृष्ण राधादि गोपियों के साथ इतने प्रेम किया, प्रेम दिलाया, और प्रेम करके उनकी इतने आनंद दिया, और फिर कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और मथुरा से एक बार भी कोई समाचार भी नहीं दिया। He did not send any message to us. इसके कारण वो पाखी काय न कथा फिराय न तार आखिर, एक बार आँख घूम कर को देखते हैं कहाँ है? हम इसको बोले आपके जड़ प्रेम की बात आ जाएगा, किंतु जड़ प्रेम नहीं है, दिस इज नॉट द मटेरियल लव। इसलिए कहते हैं ट्रांसेंडेंटल लव, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल लव और मटेरियल लव देखने में एक जैसे लगता है। जैसे एक लड़का लड़की के साथ प्रेम हो जाने के बाद कभी कभी वो क्या करती है? प्रेम एक दूसरे से बिछोड़ हो जाती है, बिछोड़ से मतलब सेपरेट है। किंतु अपराध जगत में ऐसी बात नहीं है। वो जो बिछोड़ना जो है, सेपरेशन जो है, एक दूसरे के प्रेम को क्या करती है? और बढ़ाती है, वो प्रेम को बढ़ाती है। इसी के तो प्रेम कहते हैं। इस जगत में वास्तव रूप में जो प्रेम, उसके जड़ प्रेम कहा जाता है, वो दुखदायी है। और अपराध जगत में जो प्रेम वो क्या है? दुखदायी नहीं है। ऊपर से तो देखते हैं जैसे परेशान दुखदायी जैसे लग रहे हैं, किंतु उसमें और भी अधिक आनंद होता है। जिस प्रकार वो गन्ना चिबाते हो ना, शुगर केन देखो वही शुगर केन के यदि आग में तपाया जाए, देखो आप परीक्षा करके देखो, शुगर केन के आग में तपाओ और फिर उसको चिबाओ, क्या होगा? रस तो गर्म हो जाएगा। शुगर केन के आग में तपाने से क्या हो जाता है? वो रस गर्म हो जाएगा, अंदर में रस गर्म हो जाएगा। और जब आप चिबाओगे उस रस तो गरम रस आपको क्या करेगा? जीहा को जलाएगा और साथ ही साथ मीठा भी आएगा। आपको छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा। जीहा तो जल रही है, तब तो इच्छा चौरबन जो इच्छा छड़न न जाए, लेकिन चैतन्य में करें प्रेम कैसे है? तब तो इच्छु चौरबन जो इच्छे छड़न न जाए। तब तो मन तपे हुए आग के तपे हुए गन्ना की रस इतने मिठास होता है। एक तो गन्ना की रस तो मिठास ही है, वेरी स्वीट, बट व्हेन यू पुट इन द फायर, heat of the fire, then more also tasty. तो प्रेम उसी प्रकार विरह दशा में प्रेम और एक सुंदर जो माधुर्य रस आस्वादन है। इसलिए करें तब तो इच्छु चौरबन जो इच्छे छड़ा न जाए। मैं किसने करें? इस जड़ जगत के जो प्रेम वो दुखदायी है। इस समस्त इस जड़ जगत में जितने भी प्रेम है वो एक दिन तुम्हें दुख देगा, और उसके लिए तुमको रीझना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। किंतु अपराध तो चित्त जगत में राधा गोविंद के साथ जो प्रेम जो है वो दुखदायी नहीं है। ऊपर से दुख दिखाई पड़ता है, किंतु अंतर हृदय में
आनंद होता है। इसी तो हम तो प्रेम के बारे में जो हम आलोचना करते हैं वह कहते हैं ये प्रेम क्या है। जिस प्रेम के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं वो प्रेम क्या है? बोले वो चित्त जगत की प्रेम है, ये जड़ जगत की प्रेम नहीं है। आप तो कहेंगे हम तो इस प्रेम में है, अपने माता पिता के साथ प्रेम है, बेटा के साथ प्रेम है, बेटी के साथ प्रेम है, पत्नी के साथ प्रेम है, पति के साथ प्रेम है, तो हमें क्या चीज देंगे महाप्रभु? हम तो प्रेम में बैठे हुए। कहते नहीं, तुम्हारे जड़ जगत में जो प्रेम, ये प्रेम दुखदायी है, और महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आए हैं वो सुखदायी है। क्या वो मिलन में, अथवा क्या वो विरह में, वो भी आनंद देते हैं। इसी के तो हम कहते जा रहे हैं जो प्रेम ऐसे की वस्तु है। इसलिए यहाँ पर जब कह रहे हैं जो प्रेम ऐसे ही है, राधा जी कह रहे हैं ये श्याम सुंदर पाखिरी धैर्य दे वो पाखी कहे ना कथा फिरा ने तब आखिरे एमन बेईमान पाखिरे कत तो जतन करिया हृदय पिंजरे बैठला वो बेईमान पाखी, वो बेईमान पक्षी क्या किया? अनग्रेटफुल बर्ड, वो क्या है? पिंजरा को काट करके वो उड़ करके भाग गया। तात्पर्य क्या है? ये राधा जी विरह दशा में कर रही है, कृष्ण के सामने इतने प्रेम किया, अपने हृदय रूपी पिंजरा में उसको बैठाया, और वो कृष्ण ऐसे चतुर है, कनिंग है, और हमारे हृदय रूपी पिंजरा को क्या किया? काट करके चले गए। इसलिए उसको कैसे पकड़े? उसके धैर्य देने उसको कैसे धरे? उसे पकड़े कैसे? वो भी नहीं है। वो पक्षी श्यामसुंदर रूपी पक्षी क्या है? वो पक्षी कहे ना कथा फिर थोड़ा सा बात तो करो, तो बात भी नहीं करते। अरे कुछ तो समाचार तो भेजो है। जैसे आप अपने पति से व बेटी से आप बाहर इधर है, समाचार लेते कि नहीं लेते हैं? आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बेटी ठीक है, लेते कि नहीं लेते? किंतु कृष्ण वृंदावन से छोड़ करके जब मथुरा चले गए, एक बार भी पूछा ही नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं किया, फोन नहीं उठाया। उस समय तो फोन नहीं था ना। एक बार भी फोन नहीं उठाया है। टेक्स्ट नहीं भेजा? अरे टेक्स्ट भेज दो कम से कम है। बोले कृष्ण टेक्स्ट इसलिए नहीं भेजा कहीं गलत दूसरे के पास ना चली जाए है। एक पति पत्नी के साथ बहुत प्रेम था। सुनो, टेक्स्ट कर दो, मैसेज टेक्स्ट करते हो ना आप लोग, कहीं गलत चले जाते तो उल्टा फॉलो हो जाता है। उल्टा हो जाएगी, नहीं उल्टे जाएगा। तो एक पति पत्नी बहुत प्रेम था। अच्छा चलो, पत्नी के जो है एक नगरी मिल गया, थोड़ी दूर गांव में, मान के 10-20 किलोमीटर दूर गांव में उनको नगरी मिल गई। तो पत्नी ही पतिदेव के कहने लगे, देखो मैं नगरी में जा रहा हूं, हर रोज आना जाने में मुश्किल होगा, वहीं पर एक कमरा किराए में लेकर के मैं रहूंगी, फिर बीच बीच में संडे के जैसे हमारे छुट्टी के दिन होते हैं ना, आज हम ऐसे होता है ना, हर रोज अप डाउन करने अपेक्षा समय तो समय लगता है। इसलिए भाई सैटरडे संडे आ जाएंगे और मंडे टू फ्राइडे भी रहना नहीं है। फ्राइडे 4 बजे शाम को ऑफिस करके आ जाऊंगा। पतिदेव बोले ठीक है। तो पत्नी ने क्या की, चल पड़ी और पतिदेव उनको कार में बैठाया और उनको विदाई दे दिया, माने संडे को विदाई दे दिया। जब और कब आएगी वो? फ्राइडे को नाइट आएगी, इवनिंग वो आ जाएगी। अच्छा, पतिदेव अपने पत्नी के कहने लगी, देखो एक काम करो, जाने के साथ ही साथ
तुम अपने ऑफिस में पहुंचने के साथ ही साथ मुझे टेक्स्ट करके, टेक्स्ट बोल देना, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट करके मुझे समाचार दे देना तुम ठीक से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया है। भाई चिंता, जब प्रेम होता है तो भी कहते ना है, आपके पति टेस्ट करते कि नहीं करते? हाँ देखो, ये सब इसके अच्छा है, ये हमारे अच्छा है। कहते हैं हाँ आप ठीक से पहुंच गए हैं? बोले हाँ जी मैं ठीक से पहुंच गया। फिर आप लोग, मेरा बेटी ठीक है, आप लोग सब ठीक है? हाँ जी है, अच्छा। तो देखो ओनर टेक्स्ट क्या लिखा, देखा हाँ मैं जल्दी मैं आ रही हूँ। पत्नी ने टेक्स्ट क्या भेजा, मैं आ रही हूँ, जल्दी आ जाऊँ। अरे देखो 2-4 दिन की तो बात है, आज सोमवार है, शुक्रवार आज, इसलिए कहते जल्दी मैं आ रही हूँ, मिलूंगा तुम्हारे साथ है, टेक्स्ट करके भेज दिया। देखो किंतु और टेक्स्ट जो है दूसरे के पास चले जाए, बटन दबाना था, मानो कुछ नंबर, उसमें एक नंबर गलत में हो गया तो गलत नंबर वजह से क्या हो जाए, दूसरे के पास चले जाए, दूसरे के पास चले जाएंगे है। आपके पास जो मोबाइल जो नंबर है 9 नंबर्स के 10 नंबर्स है, 11 नंबर्स है। चलो मुझे तो पता ही नहीं है कितने हमारे पास, यूके में 11। अच्छा क्योंकि एक बटन कहीं भी नंबर यदि गलत हो जाए वो दूसरे के पास चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा है कि नहीं? अच्छा दूसरे के पास चलेगी। उसमें क्या लिखा है, पतिदेव चिंता मत करो मैं जल्दी ही आ रही हूँ है, और तुमको मैं ही देखो, इधर में मेरा मन नहीं लग रही है, आपका भी मैं ले करके आऊंगी। क्या करता नहीं, पत्नी ने क्या लिखा पतिदेव को, मैं तो इधर आ गई, ठीक से पहुंच गई, आशा जी मेरा इधर मन नहीं लग रही है, और मैं जल्दी ही आपके पास पहुंच जाऊंगी और आपका भी मैं ले करके आऊंगी। समझ में? My mind is not fixed here. I am not happy. And very quickly I will meet with you and I will bring to you in my place. एक टेक्स्ट भेज दिया। देखो वो टेक्स्ट तो भेजा, गया किसके पास, दूसरे के पास चलेगी, दूसरे पुरुष के पास चलेगा। देखो दूसरे पुरुष के मैं बताता हूँ, भगवान की ऐसी इच्छा हुई, उस दिन उसकी पत्नी मर गई। कौन सा? दूसरे पुरुष व्यक्ति की। और वो पत्नी के मानो दाह संस्कार करके, माने वो क्या बोलते हैं, ग्रेप्स कैसे बोलते हैं, क्रीमेशन बोलते हैं, मिट्टी में दफन ना होगा, वो दफन करके घर में आया, अपने पत्नी की, मृत पत्नी की क्या किया, दफन करके घर में आया। और घर में आकर के जब वो मोबाइल जब खोला ना, देखा क्या लिखा है, पत्नी के मोबाइल, पत्नी को टेस्ट आ गया, पतिदेव आज चिंता मत करो मैं यहाँ पर ठीक से हूँ, जल्दी आपको मैं पतिदेव गरीब हो गया। पतिदेव देखो कभी कभी टेक्स्ट जो है दूसरे के बाद चले जाए ना, बोले पत्नी तो गई वो कब्र में पड़े हुए मुझे भी बुला रहे, बोले भूत हो करके मैंने पत्नी भूत हो करके मुझे भी क्या बुला रही है कब्र में, तुम भी आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ के कथा कहाँ चलेगी देखो है। इसलिए ये मोबाइल जो है टेक्स्ट करके भेजना ध्यान से भेजना चाहिए, नहीं तो उल्टा फोन हो जाएगा, दूसरे के पास चले जाएगा तो तुम्हारे पास वो अर्थ भी दूसरा अर्थ हो जाएगा। इसलिए टेक्स्ट भेजने के समय देखना चाहिए जो ठीक पत्नी का मैसेज है कि पति का मैसेज, मैंने वो टेक्स्ट ठीक नंबर ठीक से दबाना चाहिए। बोलो है, बोले देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये जितने भी इस जगत के प्रेम आदि जो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमें दुख देने वाले। अपराकृतिक जगत में जो प्रेम ऊपर से कहीं कहीं बिछड़ होने पर, सेपरेशन होने पर जो दुख दिखाई पड़ता रहता है, क्योंकि वो दुख नहीं है, ऊपर से दुख दिखाई पड़ता है। जैसे राधा कृष्ण के हम कहते हैं, राधा जी कहाँ पर है, वृंदावन में, वृंदावन में, और कृष्ण कहाँ पर है, मथुरा में।
किंतु देखो कृष्ण वृंदावन मथुरा में रह करके किसके स्मरण कर रहे हैं? राधा जी के स्मरण कर रहे हैं। और राधा जी किसको स्मरण कर रही है? कृष्ण। यद्यपि दोनों बिछड़े हुए हैं, सेपरेट, किंतु उसमें एक आनंद होता है। बोले कैसे आनंद होता है? ये भी आपको समझना चाहिए। देखो, जिसके प्रति हमारी अतीव घनिष्ठ प्रेम होता है और वो घनिष्ठ प्रेम से जब हम बिछोड़ जाते हैं, उसी के चिंतन करते 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 सपनों में, खाने में, सोने में वही हमें दिखाई पड़ता है। जब अतीव यह तक भी जड़ जगत में भी, मानो जैसे मैंने उदाहरण देते, कुत्ते के उदाहरण देते हैं। ज्यादा लोग कुत्ते से अधिक प्रेम करता है, अपने बेटा बेटी से जितना प्रेम नहीं होता है, अच्छा, कुत्ते के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। हाँ, इसलिए तो कुत्ते के उदाहरण दिया जाता है। इस संसार के लोग विशेष करके वेस्टर्न कंट्री में तो हमारा तो ज्यादा, मैं तो ज्यादा देखता हूँ, इतना प्रेम है कुत्ते के साथ, इतने प्रेम है क्या बताऊंगा। मैंने कहा ना, कुत्ते की भी अपने गोद में लेकर के सो जाते, खिलाते, चुमन कर, ना जाने क्या क्या करते हैं। डॉग और गॉड एक शब्द होते हैं ना, उनके पास डी के डी और DOG और GOD उल्टा करके देते हैं ना, बराबर। ये विपरीत प्रेम हो जाता है ना। भगवान के साथ प्रेम नहीं करके कुत्ते के साथ प्रेम कर लेते हैं, अपरिचित प्रेम हो जाता है, वो दुखदायी है। जैसे इसलिए मैं उदाहरण दे रहा, मानो किसी के कुत्ता मर गया, जो कुत्ते के साथ जिसने प्रेम करता है। अच्छा बताओ, वो कुत्ते के प्रेम करते उसके वो क्या करेगा? जब सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो कुत्ते के चिंतन करते 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 उसके जो है सपने में कुत्ता आकर के उसके में नोच रहे हैं। क्योंकि इस जगत की भी वस्तु है जिसको चिंतन करके उसी को होता है। इसलिए भागवत में तो वही वर्णन हो रहा है। भरत महाराज के उदाहरण वही दे रहे हैं। बोले भरत महाराज जी इतने वो हिरण्यशिशु के प्रति प्रेम हो गया, जब बैठते थे उसी के चिंतन होता था। कहीं अपने आंख से कहीं उछल जाए, उछल समझते हो, आंख से थोड़ी बहुत कहीं दूर चले जाए, वो सोचता है, तब उसने विरह होता है कुत्ते कहाँ है, और उसने चिंतन करते 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 दिखाई पड़ते उसके कुत्ता उनके पास ही मानो है, ऐसे बैठे हुए हैं। कुत्ता ऐसे करते हैं ना, वही दिखाई, ये वास्तव होता है। ठीक उसी प्रकार अपराजित जगत में वही प्रेम को हम देखते हैं। कैसे राधा कृष्ण के प्रेम की उदाहरण दिया जाता है। राधा जी कृष्ण के चिंतन करते 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 इतने भाव में अभिष्ट हो जाता है, ये कृष्ण हमारे पास ही है। कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए। राधा जी एक बार एकांत स्थान में बैठी हुई है और कृष्ण के चिंतन कर रही है। सुंदर एक सरोवर के तट पर राधा जी बैठी हुई है। अनेकों प्रकार पुष्प आदि खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर सुगंध आदि आ रहे हैं, कोयल कुहक रहे हैं, मयूर मयूरी मानो नृत्य कर रही है। ऐसे सुंदर स्थानों पर राधा जी बैठी हुई, मीठी मीठी हवा भी चल रही है और कृष्ण के स्मरण कर रही है राधा जी। और स्मरण करते करते उनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है। इतने समय उनकी कोई सखी आकर के, मानो ललिता अथवा कोई सखी आकर के राधा जी के चरण कमल में बैठ गई और राधा जी आंख बंद करके बस कृष्ण के स्मरण कर रही है। देखो विरह में कृष्ण की स्फूर्ति कैसे हो रहा है। राधा जी कृष्ण के स्मरण करते 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 ऐसे लग रहे हैं जो कृष्ण आकर के उनके पास ही बैठे हुए और राधा जी उसी विरह में कर रही क्या, अरे कृष्ण तू मेरे आंख क्यों बंद करके कर रही हो। जैसे कभी कभी प्रेम होने करते पीछे से आकर के प्रेमिक प्रेमिका के हाथ को क्या कर देते हैं, बंद कर देते ना। तो उस समय प्रेमिका कहती है ओ तुम फलाना व्यक्ति हो, मेरे आंख बंद करके रखो। ठीक उसी प्रकार राधा जी कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम होने के नाते, डीप लव एंड अफेक्शन होने के नाते राधा जी मानो उस विरह में कह रही है
ये कृष्ण मेरे आंख को बंद करके रखे हो है, ये कृष्ण, ये हाथ कृष्ण के है, कृष्ण तुम सामने आ जाओ है? ऐसे कहेंगे। कृष्ण तो है नहीं, किंतु कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में नहीं होने पर भी राधा जी विरह दशा में ऐसे सोच रही है, कृष्ण आकर के उनको आंख को बंद करके रखे। क्योंकि वो जो लीला होती थी, कृष्ण कभी कभी राधा जी के पीछे से आकर के आंख बंद कर देती थी, और उस समय राधा जी कहते हैं ओ ये तो श्याम सुंदर के हाथ हैं, तो कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए फिर राधा जी के सामने खड़ी हो जाती। उसी लीला को मानो राधा जी स्मरण कर रही है विरह दशा में। अगर ये तुम श्याम सुंदर तुम्हें ऐसे करके राधा जी क्या करती है, हंसती है। और सखी निकट में बैठी है, बोले यार कृष्ण तो है नहीं, राधा जी कैसे हंस रही हो? बोले ना ना, कृष्ण तो मेरे पास है। कृष्ण आकर के अभी कृष्ण आकर के मेरे आंखों के क्या किया, बंद कर दिया। अच्छा ये सत्य है कि कल्पना है? आप बताओ। बोले कल्पना नहीं है। उसी समय मानो कृष्ण जोगमाया के द्वारा उसी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। इस जगत में संभव नहीं है, किंतु भगवान के लिए संभव है। साक्षात भगवान कृष्ण जब राधा जी जब स्मरण करती है और स्वयं कृष्ण राधा जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। स्वयं राधा जी कृष्ण के बोले, हे राधे तुम क्यों मुझे प्रेम क्यों लगा रही हो, मेरे प्रति क्यों क्या लग रहे हो, इंतजाम क्यों लगा रहे हो? ये मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जब जब तुम स्मरण करती हो मैं तुम्हारे निकट आ जाता हूँ। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीरदास भी लिखते हैं, ये वो क्या लिखा, ये जब जब राधा जी स्मरण करती है, कृष्ण कह रहे जब मैं यद्यपि मैं मथुरा में मैं रहता हूँ, किंतु देखो नारायण की कृपा से मैं वृंदावन में आ जाता हूँ और तुम्हारे साथ मिलता हूँ, और फिर तुम्हारे साथ अनेक प्रकार के प्रेम लीला आदि क्रीड़ा आदि करके फिर मैं चला जाता हूँ। सेवियामी नारायण नीति नीति आशी वृंदावन तुम्हारा सने हाय मैं मोरी क्रीड़ा चेतन चेतन को मिला। स्वयं कृष्ण कहने लगे ये देखो तुम्हारे साथ मैं नित्य ही है, क्योंकि विरह दशा में स्वयं कृष्ण उनके साथ प्रकट हो जाते हैं, किंतु उस विरह दशा में ऐसे लगते हैं ये उसके पास है ही नहीं। इसी कथा का हमारे चैतन्य महाप्रभु लागू होता है। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया, जानते हो, चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए। और सची माता उनकी माँ सची देवी महाप्रभु निमाई के विरह में तड़पने लगे। एक दिन की बात है, माँ सची देवी महाप्रभु के जो जितने सबसे सुंदर सुंदर भजन जो है उसको बनाया, जो महाप्रभु के अच्छा लगते थे। क्या क्या महाप्रभु के अच्छा लगता था जानते हो? नहीं जानते। महाप्रभु की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? ये साग ही है, साग है ना, स्पिनिच, स्पिनिच, ये महाप्रभु अत्यंत प्रिय है। दूसरी महाप्रभु जो है एक लकलकी है, माने दूध लकलकी जिसे कहा जाता है व्हाइट पम्पकिन। व्हाइट पम्पकिन के वाल क्या बोले उसको बॉयल करके उसके दूध घना दूध के साथ जो मिला करके जो बनाते हैं उसे कहा जाता है दूध लकलकी कहा जाता है। दूध के साथ लौकी बनाने जो उसके कहा जाता है दूध लकलकी कहा जाता है। ये महाप्रभु की दूध। तीसरी महाप्रभु जो है सबसे प्रिय जो है ये है क्या बोले बनाना फ्लावर्स, उसका लीफ बनाना फ्लावर्स जिसको मोचा घंटे खा जाता है, जैसे वो करते हैं ना बनाना फ्लावर्स। ये बनाना फ्लावर्स जो है महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु कभी कभी सिद्धार्थ के दुकान पर जाते थे, महाप्रभु उससे वहीं पर उठा करके लेकर आते बिना पैसा दिए, और उससे कभी कभी उनके साथ लड़ाई होता था, झगड़ा होता, प्रेम पत्र होता था। महाप्रभु की ये समस्त चीजें बहुत प्रिय है। ये गए साग
दूसरी है दूध लकलकी माने व्हाइट पंकिन, और तीसरी जो है क्या बनाना लीफ, मोचा घटे, हाँ क्या बोले बनाना पकौड़ा। बनाना पकौड़ा, कुछ भी करो महाप्रभु ये सब है। तो एक दिन माँ सची देवी अपने बेटा निमाई के लिए ये सब्जी बनाया है। निमाई अभी कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। किंतु सची देवी अपने बेटा के लिए ये समस्त सब्जी बना करके अपने घर में सालग्राम शिला जो है नारायण को भोग लगाया है। भोग लगाया और भोग लगा करके, भोग लगाना जानते हो क्या, कैसे भोग लगाया जाता है? ठाकुर जी के पास रख दो, फिर गोपाल मंत्र जप करो, बाहर में आकर के गायत्री मंत्र जप करो, है ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार माँ सची देवी ठाकुर जी के अपने ठाकुर जो है उनके पास थाली रख दी है। सब प्रकार के जो महाप्रभु जो चीज को सबसे जब प्रिय है उसको बना करके सुंदर थाली में रख करके ठाकुर जी के पास रख करके गोपाल मंत्र जप किया, जप करके फिर बाहर आ गई है, पर्दा लगा दी, बाहर आकर के मंत्र जप करने लगे। भाई देखो मंत्र जप करते हुए कहाँ मंत्र जप होती है उनका, वही तो निमाई छोड़ करके और उनके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कृष्ण मंत्र जप करे तो कृष्ण मंत्र जप करने के साथ ही साथ बस अपने निमाई के स्फूर्ति हो जाता है। वास्तविक सत्य है, वही कृष्ण मंत्र है क्या, वही तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए माँ सची देवी जब कृष्ण मंत्र जप करती थी अथवा गायत्री मंत्र जप करती थी, हम गायत्री जप करती थी, बस वही निमाई की स्फूर्ति होने लगी है। निमाई की स्फूर्ति होने लगे, बस माँ सची देवी रोने लगी है। पता नहीं कितने समय तक माँ सची देवी भाव में बैठे रहे है, बैठी रहे बस भाव में डूब है, आंखों से आंसू की धारा बही। 1 घंटे 2 घंटे हो गया है। इसके बाद सची देवी की याद आई, ओ मैं जब ठाकुर जी को भोग लगाया था, अभी तो ठाकुर जी की थाली तो लेकर के नहीं है। देखो सची माँ ने क्या की, गई ठाकुर गृह में गई, जहाँ पर ठाकुर जी है ना, देखा तो थाली तो वहीं पर है, लेकिन थाली में कुछ नहीं, ना चावल है, ना सब्जी है, ना दूध लकलकी है, ना मोचा के घंटा है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। थाली बिल्कुल खाली है, कुछ निशाना तक भी नहीं है। एक तो चावल के कंठ पड़ा रहे हैं वो भी नहीं है, खाली मानो बिल्कुल धुला हुआ है कंप्लीटली। सोची माँ विचार करने लगी क्या बात है, शायद आज मैंने ठाकुर जी के भोग ही नहीं लगाए। देखो यदि मैं ठाकुर जी के भोग लगाते तो ठाकुर जी के थाली में तो रहा था, एक तो चावल के कम तो रहेगा, चावल की कौन भी है नहीं, थाली में कुछ नहीं है। सोची माँ मन मन विचार करने लगे ये ठाकुर जी का मैं भोग नहीं लगाया। फिर रसोई घर में गई, रसोई घर में जाकर के फिर सोची माँ दोबारा रसोई बनाया है, और बना करके अपने ठाकुर जी के भोग लगाया। देखो यहाँ पर ठाकुर जी के भोग लगाया, भोग कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। महाप्रभु इसी कथा को जो है जगदानंद पंडित के कार्य हैं, हे जगन्नाथ पंडित तुम नवद्वीप जा रहे हो, मेरे माँ की इस कथा स्मरण जला देना। एक दिन मेरे माँ मुझे ठाकुर जी के भोग लगा, मुझे चिंतन किया, मैं साक्षात जा करके उनके दिए हुए भोग को मैं साक्षात रूप में ग्रहण कर लिया, और माँ सोचती है मैं आज भोग नहीं लगाया। वास्तव रूप में चैतन्य महाप्रभु कभी नवद्वीप के नहीं छोड़ा, एक स्वरूप में मानो नवद्वीप के छोड़ करके संन्यास लेकर चले गए, और नित्य स्वरूप में महाप्रभु कहाँ रहने लगे, सची माँ की कृपा है। महाप्रभु ने कहा मैं सदा सर्वदा 5 जगह में रहूंगा। वहाँ कितने जगह में, 5 जगह में महाप्रभु रहेंगे। कौन सा जगह, श्रीवास गृह, श्रीवास जी के गृह में चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा रहते हैं, क्योंकि श्रीवास जी जैसे परम भक्त न भूत न भविष्य। श्रीवास जी के कथा सुना आप लोग नहीं सुना? बोले शिवाजी जी के घर में महाप्रभु नित्य प्रत्यह नाम संकीर्तन करते थे। एक बार शिवाजी जी के छोटा बेटा मर गया,
और शिवाजी जी नहीं रोए, शिवाजी जी सारा रात महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। और दूसरी कमरा में शिवाजी के पत्नी और महिला जो है रोने लगे। शिवाजी उनके कहा, देखो आप लोग यदि रोते रहो और महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा आएगा, इसलिए महाप्रभु के दुख होगा, इसलिए आप लोग रो मत। तुम लोग यदि रोते रहो और महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा आ जाए तो मैं ही से गंगा में जाकर के खुद जाते हैं, मर जाए, आत्महत्या कर ले। अपने छोटा बालक मर गया शिवाजी का, और महाप्रभु के घर में नाम संकीर्तन कर रहे थे। कुछ समय के बाद महाप्रभु शिवाजी के कहने लगे, श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ अमंगल हुआ? शिवाजी कहने लगे, प्रभु आप जब नाम संकीर्तन, आप सत स्वयं नामी और नाम प्रभु है, आप हमारे घर में अमंगल कैसे हो सकता है? महाप्रभु कहने लगे, नहीं श्रीवास सच बताओ, कुछ अनहोनी घटी हुई है, इनऑस्पिशियसनेस हैपेंड इन योर हाउस। देव श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ के कहने लगे, प्रभु मेरे छोटा बेटा जो है आधी रात में मर गया। महाप्रभु रोते हुए कहने लगे, श्रीवास तुम्हारे बेटा मर गया, अब तुम मुझे सूचना नहीं दिया है? श्रीवास ठाकुर कहने लगे, प्रभु आप नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाम में आनंद में ले रहे हैं, जी मैं इस संसार की बात आपके साथ बता दूं तो आपके क्या होगा? नाम संकीर्तन तो बाधा होगा और दूसरी आपके हृदय में दुख होगा, इसलिए मैं आपके समाचार नहीं दिया। तो महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास न हो तो न हो से, तुम जैसे प्रेमी भक्त संसार में कोई है? तुम्हारे छोटा बच्चा मर गया, ना तुम्हें रोया, ना तुम मुझे सूचना दिया, ना सूचित किया। देखो श्रीवास जी महाप्रभु के ऐसे प्रेम भक्त हैं, इसलिए महाप्रभु स्वयं कहने लगे, श्रीवास तुम्हारे गृह में सदा सर्वदा रहूंगा, ऑलवेज आई विल स्टे इन योर, तुम्हारे घर छोड़ कभी नहीं जाऊंगा। इसलिए महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की 5 स्थान में श्रीवास चैतन्य में रहेंगे। पहले श्रीवास जी के गृह में, सचिर मंदिर सची माँ के गृह में महाप्रभु रहेंगे। कि सची माँ छोड़ करके कोई हो सकता है? और तीसरी नित्यानंद नृत्य में, नित्यानंद को जब नृत्य करेगा, जहां पर नित्यानंद नृत्य करेंगे वहीं पर मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे नित्यानंद नर्तने श्रीवास अंगने सचिर मंदिरे नित्यानंद नर्तने और अद्वैत आह्वाने। चौथा क्या? अद्वैत आचार्य जब बुलाएंगे तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। ये चैतन्य महाप्रभु के धराधाम में किसने प्रकट कराया? अद्वैत आचार्य। इसकी भी कथा सुना, वल्लभ की कथाएं हैं। इस पृथ्वी में जो धराधाम में महाप्रभु कैसे प्रकट हुए? अरे साक्षात अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य हुंकार करने लगे और महाप्रभु के बुलाया तो महाप्रभु सर्वदेव धाम को छोड़ करके इस जगत में प्रकट हुए। सर महाप्रभु भी कहा, श्रुतिया छिनुआमी क्षीर सागरे त्रे मोर निद्रा भांगिलो नडर हुंकारे। कथा बहुत सुंदर। इसलिए महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की, जब जब अद्वैत आचार्य मुझे बुलाएंगे मैं पर प्रकट हो जाऊंगा। 4 हो गए ना। 5वां किसके घर में है? राघव पंडित है। उसकी भी कथा भी बहुत मधुर है। राघव पंडित और उनके बहन दमयंती है। राघव पंडित और दमयंती है। आज समझ गए? ये दोनों महाप्रभु ने इतने प्रेम रखते थे, मैं क्या बताऊं। जब जब ये लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, महाप्रभु के लिए नाजिन कितने प्रकार के द्रव्य सामग्री बांध करके लेकर जाते थे। चैतन्य चैतन्य तो पढ़ना है। अचार लेकर के जाते, अचार से देख पिकल्स है, वो भी लेकर के जाते थे। एक साल महाप्रभु के जितने भी भोजन सामग्री जो है, 1 साल की भोजन सामग्री
है 8-10 है क्या बोले झोला झोला समझते हो, baskets, बास्केट बंद करके ले जाते हैं। sabun. यहाँ तक भी महाप्रभु के लिए देखो गंगा की मिट्टी है ना, उसके अच्छी तरफ से साफ सुथरा करके और फिर पानी धूप में उसे सुखा देते और फिर सूक्ष्म वस्त्र में उसको छान लेते थे, उसके पाउडर बना करके ले जाते, क्योंकि महाप्रभु शरीर में साबुन नहीं लगाते थे। महाप्रभु मिट्टी के द्वारा हाथ आदि धोते थे। देखो महाप्रभु के लिए वो मिट्टी भी तैयार करके ले जाते थे, क्यों? कहीं ये धूल मिट्टी में कोई बालू है कंकड़ है महाप्रभु के हाथ में ना लग जाए, इसलिए गंगा की मिट्टी को बहुत साफ सुधार करके उसके सुखा करके डस्ट करके फिर सूक्ष्म कपड़े में उसको छान करके फिर महाप्रभु के लिए कर जाते। महाप्रभु के लिए ना जाने कितने कितने इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। महाप्रभु जब जब उनके घर में आते थे कितने प्रकार की सब्जी बनाते थे। भाई प्रेम हो तो बनाओगे, और प्रेम नहीं है ये रूखा सब्जी का खिचड़ी खा लो। भाई हम जल्दीबाजी करते हैं ना, जल्दीबाजी कर दो, क्या बोले इतने कहाँ बना पाएंगे, बनाने में समय लगेगा कि नहीं है? चावल दाल और सब्जी एक साथ में मिला दो और वो क्या बोलता है कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में सीटी लगा दो, 5 मिनट में हो जाएगी। 10 मिनट है 10 ये बोल रहा है 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट है। अच्छा होता है कि नहीं होता? और अनेक प्रकार की सब्जी बनाओ, कितने समय लगेगा? 2-4 घंटे लगेगा। जैसे देखो ये महिला कला क्या करेंगे, देखिए काम कुछ नहीं बना दे जा रहे हैं। तो जहां पर प्रेम होता है अनेक प्रकार बनते बनाते रहा। तो उसी प्रकार ये क्या बताया, दमयंती और उनकी भाई क्या नाम है, राघव पंडित। महाप्रभु के लिए इतने सब बनाते थे। कभी चलना स्थान पर है वो क्या बोले गंगा के तट पर हम जाते थे, पहले जाता था, अभी जाना कम कर दिया है। वो क्या बोलते हैं, अरे जहाँ पर चूड़ा दधी महोत्सव रघुनाथ दास किया था, मैं भूल गया नाम को। गंगा के तट पर इतने देखने के इतने सुंदर स्थान है मनोरम स्थान है क्या बताएं। और निकट में राघव पंडित और दमयंती के गृह है। महाप्रभु कभी कभी उनके घर में पहुंच जाते थे और महाप्रभु के प्रति इतने प्रेम क्या बताएं। जब महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए, ये लोग भी इतने इतने सब बना करके ले जाते हैं। इसलिए महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये राघव मेरे गृह, राघव पंडित के गृह में मैं सदा सर्वदा रहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम किसको कहा जाता है? जहां पर हमें ये समस्त मिल जाता है वही तो प्रेम होता है। तुम कहाँ रहना चाहते हो? Where will stay? Where do you want to stay? कहाँ रहना चाहते हो आप बताओ? Where there is love. जहाँ पर प्रेम मिले। Where there is love. Where will get the love and affection. Love and affection है? Love and affection ऐसे होता है, वो क्या करते हैं? बांध देते हैं। वो अपने आप बंद करके रखते हैं। जैसे कमल अपने सुगंधी मकरंद के द्वारा भ्रमर के जैसे नोता दे करके वो अपने भ्रमर को बांध देते हैं। समझती है? समझ में आ रही है? कमल जैसे पंखुड़ी के प्रस्फुटित करके अपने मकरंद के सुगंध के चारित्र क्या करते हैं? फैला देते हैं। इसको क्या कहते हैं? नोता देना, निमंत्रण दे देते हैं, इन्विटेशन दे दिए। और भ्रमर उस इन्विटेशन के पा करके बाद दौड़ करके आकर के कमल में आकर के बैठ जाता है। अच्छा बैठ जाता है, कमल भी कम नहीं है, बोले बहुत दिन के मित्र तुम चाहे तुमको छोड़ोगे नहीं, छोड़ना ही नहीं। तो भ्रमर क्या करती है, वो मकर कमल के मकरंद के पान करते 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 पर वहीं पर वो सो जाते हैं और कमल क्या करते हैं, अपने पंखुड़ी के द्वारा उसको सुला देती है। वृंदावन बिहारी लाल। बोले कहाँ से जाओगे तुम? समझ बैठे? बोले प्रेम इसी प्रकार है। प्रेम क्या करते हैं, पहले नोटा देते हैं। नोटा समझते हो? इन्विटेशन देते हैं और तुम जब उस इन्विटेशन में जब आ जाते हो बस छोड़ेंगे नहीं। बोले कहाँ जाओगे तुम?
हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गुरुदेव की जय, श्री भक्तिवेदांत महाराज की जय। बहुत समय हो गया है, 10-15 हो गया, खास चालू, ठीक है ना? बोल पानी पानी हाँ? पानी पानी। अच्छा चलो, Take the cover off. We can't drink the plastic. आपकी इच्छा है, सिर्फ एक सजेशन है। अच्छा आप मांगते हैं तो आप तत्व में बारे में कुछ भी बोल सकते हैं कि किस प्रकार के भक्ता रहते हैं ना, सकम भक्त, ज्ञान भक्त। हम ये आज आप बात करेंगे तो मैं सब दिखा दूँगी। हाँ, तो आप ये सब जगह बोलो तो मैं सब वो ध्रुवा महाराज के हाँ है सकम भक्त